Hello 10th standard, welcome to the English class. I hope you all are well. In this video, I will explain you the last part of the lesson, the 100 dresses part 1. Before this, you have studied that the result of the drawing and coloring contest are to be announced, and there was a state of confusion in the students that who will win in the competition. If it is the matter of girls, the girls and most of the students are guessing that Peggy would win the contest. Now let's start. The next day it was drizzling. Maddie and Peggy. The next day it was drizzling. Next day क्या हो रहा था? It was drizzling. Drizzling क्या होता है? Drizzling is a very light rain. Drizzling is a very light rain. जब बहुत बौछारें सी हल्की सी बारिश हो रही होती है. Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. Maggie and Paddy स्कूल के लिए जा रहे थे in a hurry and using the umbrella of Peggy. Naturally, on a day like this, they didn't wait for Wanda Petronsky on the corner of Oliver Street. And naturally, on a day, and it was natural that the day like this, in which it was drizzling, the weather was not fine, not good, so they didn't wait for Wanda Petronsky on the corner of the Oliver Street. क्लियर? उन्होंने ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पर वांडा पेट्रोन्सकी के लिए वेट नहीं किया एज यूजुअल वो करती थी बिकॉज टुडे द वेदर इज़ नॉट गुड. इट वॉज अ बैड वेदर एंड देयर वर क्लाउड्स इन द स्काई एंड इट वॉज ड्रिजलिंग. सो बैड मौसम को अवॉइड करने की कंडीशन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो डेली उनका यूजुअल था कि वो क्या करती थी, वो मजाक बनाती थी वांडा का, कहाँ पे खड़े होके इन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट. आज उन्होंने वहाँ वांडा का वेट नहीं किया. देर ऑल्सो अनदर रीज़न फॉर वोट दे आर नॉट वेटिंग फॉर वांडा. द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप. एंड द ओलिवर स्ट्रीट में जो स्ट्रीट कहाँ पे थी, दैट फार फार अवे, दैट वॉज एट अ लॉन्ग डिस्टेंस. एंड कहाँ पे, अंडर द रेल रोड ट्रैक्स, जो उस पाथवे पे थी जो कौन से कहा जाता था रेल रोड पे, एंड अप द हिल और पहाड़ी के ऊपर, एंड लेड टू बोगिन्स हाइट्स. और कहाँ तक जा रहा था वो, बोगिन्स हाइट तक जा रहा था. एनीवे दे वरंट taking chances on being late today. And the another reason is that they are not intending, they are not desiring that they would be late as usual. They do this because today was important. Why today was important? Today was important because today the results are going to be announced of the drawing and coloring contest. That is the very important part of the lesson because in the last year a question is asked from that part, because why did Peggy and Maddie didn't wait for Wanda on the day when the result is to be announced. So that is very important part, so I hope you will study that part very carefully. So टू रीजन्स वर देयर. टू रीजन्स से उन दोनों ने वहाँ जो है वेट नहीं किया. किसका? वांडा का. द वन रीज़न वॉज दैट द वेदर वॉज नॉट फाइन एंड द अनदर रीज़न वॉज दैट दे वर गेटिंग लेट फॉर द स्कूल एंड उन्हें आज लेट नहीं होना था क्योंकि रिजल्ट आर टू बी अनाउंस्ड. नाउ डू यू थिंक मिस मैसून विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पैगी. अब नाउ पैगी जो है वो आस्क करती है किससे? मैगी से, कि क्या तुम, डू यू थिंक मिस मैसून विल अनाउंस द विनर्स टुडे? सो देयर इज़ अ होप दैट द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बाय मिस मैसून टुडे. Oh, I hope so. The minute we get in, said Maddie. And Maddie was saying that I hope that the results will be announced by the miss, and we are getting late because
एज वी वुड एंटर द मिनट वी गेट इन, इट मीन्स जब हम एंटर करेंगे देन तभी जो है कि रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड. Of course, you will win Peg. And moreover, she gives assurance to Peggy that she will be the winner of the competition. वो अगेन कहती है कि आप तुम जो है तुम ही जो है कंपटीशन की विनर होने वाली हो. होप सो सैड पैगी ईगरली. एट दिस जो पैगी है वो ईगरली कहती है होप सो मीन्स ऐसा ही होगा. द मिनट दे एंटर द क्लास रूम एंड एज ऑलरेडी इट इज़ बीइंग प्रेडिक्टेड बाय मैडी दैट जब वो एंटर करेंगे क्लासरूम में तभी रिजल्ट अनाउंस होगा. देन सेम एज हैपन द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गास्प्ड. दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गास्प्ड. स्टॉप शॉर्ट वो रुक जाते हैं वहाँ पे. एंड गास्प्ड मीन्स गास्प क्या होता है? शॉर्ट क्विक ब्रीथ. जब आप सरप्राइज होते हैं, आप शॉक्ड होते हैं और आपको जो है आपकी जो ब्रीदिंग है वो हाई हो जाती है, ठीक है, दैट इज़ गास्प. तो वो सरप्राइज और शॉक तरीके से वो खड़े हो जाते हैं. दे वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम. पूरे रूम में ड्राइंग्स थी. इट मीन्स रिजल्ट अनाउंस होने वाला था. ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल dazzling colors and brilliant lavish designs. On every ledge and window sill, every ledge पे, what is ledge? Ledge is a narrow shelf underneath a window. And what is window sill? Window sill is the surface at the bottom of the window. The surface at the bottom of the window. Window का वो वाला एरिया जहाँ पे आप कुछ चीज़ें रख देते हैं, that is window sill. So every ledge पे and window sill पे there was paintings, there was drawings and that were dazzling colors. उनके कलर्स कैसे थे? dazzling. What is dazzling? Dazzling is extremely bright, impressive and it is a brightness type of this. जब आपको अब देखते हो लगता है कि वी आर अबाउट टू ब्लाइंड, से कभी कभी बहुत तेज जो सन ब्राइट होता है ना, तो ऐसी ब्राइटनेस जो है दैट इज़ dazzling कलर्स एंड ब्रिलियंट जो बहुत अपने आप में क्या हो, ग्लिमर से ब्राइटनेस से फुल हो. एंड लेविश डिज़ाइंस. एंड लेविश जो अपने आप में क्या हो वो शानदार हैं, ग्रैंड है. ऑल ड्रोन ऑन और वो सभी किस पे ड्रोन हुए थे? ग्रेट शीट ऑफ रैपिंग पेपर. जो रैपिंग पेपर होता है रैप करने वाला, उसकी बड़ी बड़ी बिग शीट्स पे. देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप. एंड यू कैन गेस कि एटलीस्ट 100 ऑफ देम ड्रेसेस थी एंड ऑल आर लाइंड अप. वो सभी क्या थी? बिल्कुल लाइन अप की गई थी. एक प्रॉपर वे में जो था उनको अरेंज किया गया था, लाइन अप किया गया था, मीन्स स्ट्रेट लाइन में उनको रखा गया था. These must be drawings for the contest. कॉन्टेस्ट के लिए ड्राइंग्स थी जो वो आइडिया गेस कर रहे थे. They were everybody stopped and whistled or murmured admiring. They were मीन्स वो किसके लिए थी? एग्जैक्टली दे वर फॉर द कॉन्टेस्ट एंड एवरीबडी स्टॉप्ड. हर एक पर्सन स्टॉप हो रहा था, रुका. एंड विशल्ड और उसने क्या किया? विशल किया मीन्स क्रिएटिंग साउंड्स लाइक सीटी बजाना है ना. एंड और मरमर्ड एडमायरिंगली या फिर मरमर्ड किया धीरे से जो था, एडमायर वे में, एक किसी को अप्रिसिएट करने के तरीके से, उसकी तारीफ़ करने के लिए इस तरीके से हर एक पर्सन रुक रहा था. और yes, as soon as the class had assembled, Miss Masoon announced the winners. Jack Bagels had won for the boys, she said, and his design for an outboard motor was in exhibition in the room 12 along with. As soon as the class had assembled, जैसे ही क्लास जो थी वो assemble हो गई, means जो क्लास थी all the students has come, has gathered. Miss Masoon announced the winners. Then Miss Masoon ने announce किया winners को. And in the winners Jack Bagels had won for the boys. In the boys contest कौन किसने win किया? Jack Bagels ने. She said and his design for an outboard motor. और मिस मैसून ने कहा कि उसका जो डिज़ाइन है आउटबोर्ड मोटर के लिए
वो वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12, वो रूम नंबर 12 में एग्जीबिशन के लिए, डिमोस्ट्रेशन के लिए जो है वो रखा हुआ है. देन along with the skates by all the other boys. एंड वो कहाँ पे रखा हुआ है, वो जो एग्जीबिशन इन द रूम, वो रूम नंबर 12 में एग्जीबिशन के लिए रखा हुआ है. साथ में जो अदर बॉयज़ हैं उनके भी जो स्केचेस हैं, उन्होंने भी जो ड्राइंग्स स्केट्स बनाए हुए हैं वो भी वहीं पे रखे हुए हैं. As for the girls, she said, although just one or two skates were submitted by most. As for girls, और अगर गर्ल्स की बात करें, she said, उन्होंने कहा, although just one or two skates were submitted by most. सभी ने क्या किया है, एक या दो जो स्केट्स हैं वो क्या किए हैं, सबमिट किए हैं. बट क्या यहाँ पे स्टेन था, दैट वॉज वन गर्ल and room 13 should be proud of her. What is the suspicion? कौन वो गर्ल हो सकती है जिसने क्या किया, उस गर्ल ने रूम 13 इस पर क्या करता है, प्राउड करता है. एंड हु इज़ द गर्ल, दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस. उस अकेली लड़की ने क्या किया है, 100 डिज़ाइंस को ड्रॉ किया है उसने. ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, एंड ऑल द डिज़ाइंस वर have variation and they were beautiful, they were attractive, they were admiring. In the opinion of the judges, any one of the drawings is worthy of the winning the prize. And if we talk about the judges, अगर हम judges की बात करें तो उनके ओपिनियन में क्या है, any one of the drawings, the drawings that are made by the girl, जिसने 100 डिज़ाइंस बनाए, उनमें से किसी कोई भी एक जो है दैट इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, वो प्राइज विन करने के लिए वर्दी है. इट मीन्स ईच ड्रेस इज़ ब्यूटिफुल, ईच ड्रेस डिज़र्व प्राइज, डिज़र्व विनिंग. आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स. फाइनली द टीचर, द मिस हैज़ अनाउंस द नेम ऑफ द winner and that was Wanda Petronsky is the winner of the girls medal. जो गर्ल्स मेडल था उसकी विनर का नेम क्या था, वोंडा पेट्रोन्स्की था, अकॉर्डिंग टू मिस मैशून. सो द रिजल्ट इज अनाउंस बाय मिस मैसून. उन्होंने कहा कि रूम नंबर 13 में जो है वो प्राउड करती हैं गर्ल पे, जो ओनली वन गर्ल है जिसने कंपैरेटिवली अगर देखें तो उसने 100 डिज़ाइंस उसने ड्रॉ किए हैं और सारे डिज़ाइंस जो ब्यूटीफुल हैं. और जजेस की ओपिनियन में भी, जजेस ने ओपिनियन दी है उसमें भी जो ड्राइंग्स है वो वर्दी है. उनमें से ईच जो ड्राइंग है वो क्या है, दैट इज़ वर्दी, किसके लिए, विनिंग के लिए, प्राइज़ के. एंड दैट्स वाई शी इज़ वेरी हैप्पी कि द नेम ऑफ द विनर इज़ वोंडा पेट्रोन्स्की. Unfortunately, Wanda has been absent from school and the teacher added then, उसने कहा unfortunately, it was very unfortunate that today Wanda is not present because she has been absent from school for some days, क्योंकि वो कुछ दिन से जो है स्कूल नहीं आ रही है and is not here to receive the applause that is due to her. जो applause, जो admiration, जो अप्रिसिएशन उसके लिए है, उस फॉर हर है, उसको एक्वायर करने के लिए शी इज़ नॉट प्रेजेंट. लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो. एंड द टीचर इज सेइंग दैट हम वी आर होपिंग, वी आर विशिंग दैट वांडा विल बी प्रेजेंट टुमारो. नाउ क्लास, यू मे फाइल राउंड room quietly and look at her exquisite drawings. Now the teacher is saying that she was feeling very unfortunate that Wanda is not present. आज जो है वोंडा नहीं आई है बिकॉज वो कुछ दिन से स्कूल में क्या है, एबसेंट रही है. दैट्स वाई शी इज़ नॉट प्रेजेंट टुडे टू रिसीव द प्राइज, द अवार्ड दैट इज़ ओनली ड्यू टू हर. इसीलिए आओ हम क्या करें, डिज़ायर करें दैट शी विल बैक टुमारो. And now the teacher ordered the class that they are supposed to file around the room quietly. कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें, वो रूम में फाइल अराउंड से मीन्स मार्च आउट करें. ठीक है,
मार्च आउट करें रूम से, ठीक है, क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्विजिट ड्राइंग्स, और उसकी जो एक्सक्विजिट ड्राइंग्स है, व्हाट इज एक्सक्विजिट, जो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड ड्राइंग्स हैं, उन ड्राइंग्स को वो क्या करें, उनको देखें, बाय मार्चिंग, बाय filing around in the room. The children burst into applause, and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor. The children burst into applause. जो children थे, the children burst into applause means they all gave a big hand of applause, means उन्होंने clapping start कर दी, burst into applause suddenly और spontaneously जो है उन्होंने क्लैपिंग स्टार्ट कर दी. एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस, और इवन जो बॉयज़ थे वो भी ग्लैड थे, वो भी खुश थे उस चीज़ से, क्योंकि उनके पास क्या था, दे आर हैविंग अ चांस टू स्टैम्प, they are having a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouths. उनके पास एक चांस था, एक अपॉर्चुनिटी थी. they were glad, they were happy to stamp on, स्टैम्प करने के लिए, put feet down, नीचे पैर रखने के लिए, किस पर, फ्लोर पे, मीन्स एक जंपिंग वे में, put their fingers in their mouths, एंड अपनी फिंगर्स को अपने माउथ पे रखते हुए, एंड विशल, और क्या करते हुए, क्रिएटिंग लाउड स्क्वीजिंग साउंड्स, लाइक जैसे कि सीटी बजाना है ना. दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, जबकि वो ड्रेसेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी थी खुश होने की, इसलिए उन्होंने भी क्लैपिंग स्टार्ट कर दी और वो बहुत हैप्पी थे इस चीज़ से.